thank you so much for coming, Deepak ji. I really appreciate your taking the time and trouble. It's basically my pleasure, seriously. So, I mean, I'm very thankful to Astro Yogi and all of you, seriously. So, you are one of our busiest astrologers, at least one of them. You're someone who has very notoriously long queues, notoriously long, and so we always get to hear ki, your name comes up. Let me put it this way, in conversation about who has these long queues, why do they have these really long queues, Right. and so you wanted, why is this long queue for you? What is going on? Even I don't know about it, seriously. I mean, sometimes, what happens, there are a lot of, variety of problems. And I'm a very spiritual person. So I think, I don't know why I'm having such, long queues at Astro Yogi. But मुझे ऐसा लगता है कि it's maybe Lord Shiva's grace, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं और ठीक है, उनको अपने questions के answer मिलते हैं. So they get their answers and they feel satisfied. So it happens, and they make a circle of references. So that's it. And do you get a lot of references? Yes. Yes? Lots and इतने references हैं कि एक यूजर आ रहा है, 20 यूजर्स को ला रहा है, और वो बाद में मुझे कह भी रहेगी कि मतलब वो मेरी अवेलेबिलिटी को थोड़ा सा इजी कर दो. मैंने ही रेफर किया था और मैं ही नहीं आपसे बात कर पा रहा. Correct. Right. So I think this is the reason. And where did this journey with astrology start for you? मतलब कैसे शुरू हुई आपकी? It's a God-gifted scenario. Basically, I have never learned astrology. It's my own. I usually call myself as a researcher. So, मैं past 23 years से corporate sector से जुड़ा हुआ हूँ, and I'm a creative person. So I do research in each and every scenario. Right. So astrology is one of that particular thing, but it's connected with my soul. So वो है. Sometimes it happens like वो अंदर से आते हैं, zeal है, I don't know, वो Lord Shiva का blessing है, I don't know, but it's a God-gifted scenario. At the age of 12, I realized कि ऐसा कुछ है around, क्योंकि जो मैं बोलता था वो हो जाता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या हो रहा है. Okay. So I usually studied numerology, and then Vedic astrology, and then Bhrigunandi Nadi Gemini Sutram. So I did it by myself only. So that's. So you self-taught yourself. Yes, exactly. And what inspired? Like suddenly you felt what? That let me. I'm just saying that as a young child, it's not the most, what would I say, obvious thing. Right. that a young child wants to do. Right. So what do you think? एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ. हाँ जी, please. हो सकता है ल्यूसिड ड्रीम हो, बट 10 to 12 years के अराउंड जो एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में. I was actually sleeping, with my grandma. So पता नहीं एक ल्यूसिड ड्रीम था. So जो भी इसको सुनता है वो ऐसे कहता है कि इट्स अ ल्यूसिड ड्रीम. ये टर्म मैंने बाद में सुना. तो आई एक्सपीरियंस्ड एन ओल्ड मैन. वो मेरे पाँव पकड़ के बैठा था, और बहुत सारी, जैसे पता ना, फायर है उधर. सो इन upcoming 6 months of scenario, I realized this particular this particular experience. After this particular experience, I realized कि मतलब हाँ ऐसा कुछ. So what was that old man representing? I don't know. Wisdom? What was it?
maybe wisdom or kind of knowledge or something like that. और Okay. अभी तक मैं ऐसे 5 लोगों से मिला हूँ अपनी लाइफ में जो मिलने के 10 सेकंड्स में वो पता नहीं किधर चले गए हैं। तो अच्छा। और वो हमेशा एक बोल के जाते हैं कि आपको अभी जैसे लास्ट टाइम जब मैं मिला था सो उस समय एक अच्छा इवेंट हुआ, एक बुरा इवेंट हुआ। बुरा इवेंट ये हुआ कि 2019 में 2 अप्रैल को आई लॉस्ट माय मदर। सो उसके 2 दिन बाद मुझे एस्ट्रो योगी से कॉल आया। तो so it was like that. So it was an emotional scenario for me. So तब जो मुझे मिले थे वो उन्होंने मुझे बोला कि अब 6 years के बाद में आपको एक और ऐसा कुछ होगा. So you will experience something like that. So it's kind of a superficial scenario. But मैं इसमें विश्वास नहीं रखता. I'm a very practical person because last 23 years हो गए मुझे corporate sector में काम करते हुए. I worked with NASA. I worked with UK Army. So मुझे ऐसा लगता है ये नहीं होता है, but spiritually I'm very active. So you worked with NASA at one end, and at the other side, you're finding this. You're being drawn to astrology. You're doing it actively as Right. well. Is that a contradiction for you, or is that? मेरी लाइफ में मैं बहुत सारी चीजें फॉलो करता हूँ. I'm a musician. I Okay. play keyboards and drums. एंड Wow. मेरे लाइफ टाइम में मैंने मेरे फादर जो हैं वो पास्ट 35 ईयर्स से बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं. Okay. सो इन दिस पर्टिकुलर म्यूजिक फील्ड. सो उनके साथ मैंने काफी थाउजेंड्स ऑफ स्टेज परफॉर्मेंसेस दिए हैं. तो Wonderful. Okay. राइट. सो एस्ट्रोलॉजी है, म्यूजिक है, स्केचिंग है, पेंटिंग है. सो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि और मेरी मदर की वजह से मेरी जो मेमोरी है वो फोटोग्राफिक है. तो मतलब मैं कई बार मतलब इट्स नॉट अ कॉन्ट्रडिक्शन फॉर मी, Right. इट्स अ साइमल्टेनियस प्रोसेस. सो And I've also now understood कि आपकी क्यों लगती है. Because when you're involved in so many things, राइट it is but maybe one natural. of the reasons. Seriously, you're right. It could that could be one of the reasons. Right. Where is this man? He's off playing And drums somewhere. right, and my first love was astronomy. Okay. तो मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे बोलते हैं कि जब वो बच्चे बोल रहे होते हैं कि हमें बाइक दिलवा दो, तो ये लड़का बोल रहा था मुझे टेलीस्कोप चाहिए. तो मेरे पास काफ़ी मतलब कलेक्शन है अच्छा खासा. तो मतलब यूजुअली आई स्पेंड माई नाइट्स ऑन माई रूफटॉप. जब भी कोई सैटर्न दिख रहे होते हैं या फिर मून दिख रहा होता है. मून तो खैर दिखते ही है, पर उसका क्लोजेस्ट व्यू जो है वो ऐसा लगता है कि इट्स लाइक एंड इट कम्स फ्रॉम माई चार्ट एज वेल. आई हैव दैट सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन. और सैटर्न राहु कॉम्बिनेशन एक बहुत बुरा कॉम्बिनेशन माना गया है एस्ट्रोलॉजी में. Okay. एंड वो भी 8th हाउस में. सो उसकी एक रेमेडी होती है कि अगर इंसान जो है ना वो स्टारगेज करता है या उसको स्काई गेजिंग की आदत है, तो वो दोष जो है वो रिजॉल्व हो जाता है. Okay. तो ये मैं बचपन से कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता मैं वो वाली रेमेडी कर रहा हूँ. सो इट नेवर गिव्स मी एंड इट नेवर गिव मी दैट पर्टिकुलर नेगेटिविटी. सो ये चीज़ है. And how do you link it in your mind? Astronomy, astrology. What's the क्योंकि link? हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में हो रहे हैं वही तो ऊपर चल रहे हैं. बिकॉज एस्ट्रोनॉमी इज वेरी वेल कनेक्टेड विद एस्ट्रोलॉजी. सो मान लीजिए आज हम किसी पर्सन का बर्थ चार्ट बना रहे हैं, तो अगर मार्स ने एरीज में एंटर किया है मतलब एज पर द एस्ट्रोनॉमिकल वैल्यूज. Right. सो वही एस्ट्रोलॉजिकल जो बर्थ चार्ट है वो भी मार्स को एरीज में दिखाएगा. Right. सो Correct. जो ऊपर चल रहा है वही नीचे चल रहा है, ऐसा है. सो फिर मैंने मास्टर्स किया साइकोलॉजी में और एंथ्रोपोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था. ज्योग्राफी से मुझे बहुत प्यार है. सो मुझे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट पढ़ने की आदत है केमिस्ट्री को छोड़ के. So you sound like you're a lifelong learner. Yes. Because I think that's one of my personal philosophies as well. That life is interesting if you continue to learn. Yes. If you have something new
you're learning all the time, whether it's through books, whether it's through Right. classes or whatever. Definitely. That's just what enriches your life completely. Right. Exactly. And I think that enrichment then comes to your astrology. Yes. What would you say to non-believers of astrology? वो अपनी लाइफ में ना, देखिए कभी कभी ना कुछ लोग मुझे कहते हैं कंसल्टेशन पे एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए काम नहीं कर रही। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कितनी बड़ी चीज मिस कर गया अपनी लाइफ से। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ काइंड ऑफ एन आर्ट, इट्स नॉट अ क्राफ्ट। अगर जैसे मैं अभी अमन जी से बात कर रहा था, तो मेरी एक क्लाइंट है, वो एक घर खरीदने के लिए बार बार जाती थी और वो उस घर को नहीं खरीद पाती थी, उनको बड़ा पसंद है वो घर। तो मैं उनका बर्थ चार्ट देख रहा था, मरकरी डेबिलिटेशन में था। तो मैंने कहा आप जाते तो हो अपने वहाँ पे, तो आप ना ऐसा करो कि उसमें ना बड़े पत्ते वाले पौधे लगे हुए हैं, उनको सबको कटवा दो। तो कहती है वो तो ठीक है, वो तो मैं कटवा दूंगी, पर ना मुझे अब ये बताओ कि आपको कैसे पता चला कि वहाँ बड़े पत्ते वाले पौधे लगे हुए हैं। मैंने कहा क्योंकि मेरे पास आपका बर्थ चार्ट है, आपके वार्डरोब में किस कलर का कपड़ा नहीं है वो भी आपका बर्थ चार्ट बताएगा, अगर उसको कोई ध्यान से पढ़े तो किसी ने अपना बर्थ चार्ट अगर मेरे जैसे किसी इंसान को दे दिया है तो उसने अपने बहुत सारे सीक्रेट्स आउट कर दिए। तो ये है नॉन बिलीवर्स के लिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है जो इंसान बिलीव नहीं कर रहे हैं ना, तो मतलब मैंने अपनी लाइफ के 4 साल ऐसी मतलब मैंने एस्ट्रोलॉजी को गलत करने में लगाए हैं। मैं लोगों से प्रेडिक्शन लेता था, बड़े रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर्स होते थे और वो कहते थे ये लड़का बार बार आ जाता है, प्रेडिक्शन लेता है फिर उसको गलत कर देता है। पर मैंने ना एक चीज़ सीखी, जो गलत कर रहे हैं ना उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। क्योंकि अगर कोई अपनी फ्री विल ट्रिगर कर रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मैं एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करता, मैं मॉडर्न डे पर्सन। तो मुझे लगता है कि भाई ये मतलब ये अपनी लाइफ का ना 90% जो रियलिटी है ना वो मिस करके जा रहा है। 10% रियलिटी जो है ना वो ये है भ्रम, बेसिकली जो कभी भी रह नहीं जाएगा हमारे साथ में। But what kind of a reality will they miss? Like, Right. For example, जैसे मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने मुझसे फर्स्ट कंसल्टेशन लिया, तो मैंने वो उनका एक रिलेशनशिप का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मतलब ये इंसान से मुझे शादी करनी है। मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा। कहते नहीं आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर ऑफ कर्मा। मैंने कहा नो, इट्स नॉट कर्मा, बेसिकली इट्स योर स्टबर्ननेस। तो मैंने कहा ये इंसान ना, मैं आपको पहले कंसल्टेशन पे बता रहा हूँ, ये इंसान ना आपको छोड़ के जाएगा और इनकी शादी होने वाली है थोड़े दिन में, 2.5 महीने में इनकी शादी होगी। और मैंने कहा अभी भी हट जाओ, नहीं तो आप मुझ पर गुस्सा निकालोगे बाद में। तो असल में प्रॉब्लम क्या होता है मैम, कि प्रॉब्लम हमारे में होता है। 90% जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना वो हमारे अंदर है। Right. अगर हमारे साथ कोई समस्या है तो हम अगर इस सेंटेंस को एक जगह लिख लें कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले ये लिखोगे कि मेरे साथ है, तो वो हमारे अंदर है बेसिकली। Right. तो हो क्या रहा है कि वो जो 10% रियलिटी है ना, वो ये है कि आज मैंने कार खरीदी, वो मेरी 10% रियलिटी का पार्ट है। वो कार जब मैं चला जाऊंगा ना दुनिया से, तो वो मेरे साथ नहीं जाने वाली है, ठीक है। पर मेरे साथ वो चीजें जाएंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़े सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो अपनी लाइफ में ना फीमेल्स को कभी कोई, वो कहते हैं ना अप्रिशिएट नहीं करते, अप्रिसिएशन नहीं होता उनके लिए कुछ। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये लिटरली मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कह रहा, यहाँ बहुत सारी फीमेल्स हैं, तो मैं बस ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखो ना मेल्स कर क्या रहे हैं असल में। हम एक साइकोलॉजी में एक टर्म लिखते हैं मेल ईगो। ये सबसे फालतू की चीज है जो भगवान ने बनाई है इस पृथ्वी पे। अगर ये नहीं होगा ना तो हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। क्योंकि सीरियसली मेल क्या कर रहा है, आप बताइए, मेल क्या कर रहा है? वो कमाने का काम कर रहा है, घर पे आते हैं और बोलता है अरे मतलब वो मेल डोमिनेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। मैं ऐसी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ना शुरुआत में अपनी दादी को देखा फिर अपनी मदर को देखा, फिर अपनी दोनों बहनों को देखा, फिर अपनी वाइफ को देखा,
और मैं अभी बाहर बात कर रहा था, मैंने कहा मेरी वाइफ नहीं होती तो मैं एस्ट्रो योगी में नहीं होता। तो मतलब क्यों? Why is that? क्योंकि वो एस्ट्रो योगी यूज करती थी पहले, हमारी शादी हुई तो उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू जॉइन एस्ट्रो योगी। तो मैंने वो ज्वाइन किया और वो भी मेरी क्यू में होती है कभी कभी। Your wife? हाँ जी। तो Really? हाँ जी, वो लास्ट टाइम मुझसे पूछ रही थी, उसने बहुत दिनों तक अपना बर्थ चार्ट मुझे दिया और वो मुझसे पूछती है कि मतलब मैं अपने आप को एक टफ प्रोफेशनल मानता हूँ, मेरे साथ काम करना बहुत मुश्किल है, तो पर वो मुझसे भी ज़्यादा टफेस्ट प्रोफेशनल है। शी इज़ एन MBA एंड वो बहुत सारी कंपनीज के लिए उसने काम किया। सो एक दिन वो मुझसे पूछती है कि फैमिली प्लान करनी है, रेमेडी बता दो प्लीज। और मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने कहा यार ऐसा है, और शी इज माय आइडियल बेसिकली, तो ऐसा है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बहुत दिनों तक टाइम नहीं बताया। एक दिन वो मेरी क्यू में आ गई और क्यू में आके पूछती है पिछले साल कि सर मुझे ना बेबी प्लान करना है, उसकी रेमेडी चाहिए, आप बताइए कब तक होगा, और अगर नहीं होगा ना फिर मैं आपकी रेटिंग दूंगी आपको। तो मैंने कहा ये तो टफेस्ट टास्क है भाई। Yeah, but you knew it was your wife? Yes. Oh, you knew it was your wife. Right. So फिर अभी we were actually expecting a child, and on 9th of February we blessed with a baby girl. So Many मतलब congratulations. Thank you. तो मैंने कहा बाकियों की रेमेडी मतलब काम करे या न करे, ये इंसान की करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो, जैसे ये एक एग्जांपल है कि वो चार्ट ही हमें बताता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आमतौर पे क्या होता है, लोग ना आते हैं, जैसे मेरे 2020 में एक क्लाइंट, तब से क्लाइंट है, ही वाज अबाउट टू कमिट सुसाइड एट दैट पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ हिज रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। तो मैंने कहा ऐसा मत करना, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों का ना एम्प्लॉयमेंट मारा जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि कैसे। मैंने कहा आप आगे जाके कंपनी स्टार्ट करोगे, तो मतलब अगर आप आज चले गए यहाँ से, तो फिर वो जो आके काम करेंगे आपके यहाँ पे, उनके घर भी तो चल रहे हैं। एंड लिटरली उन्होंने मेरी बात मानी। एंड हमारे जो बर्थ चार्ट होता है ना, वो एक गूगल मैप की तरह होता है। वो ये बताता है कि अब आपको ये रास्ते से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। कई मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि अगर मैं एस्ट्रो योगी के थ्रू अगर मैं ये पता नहीं कर रहा होता कि मेरे बर्थ चार्ट में डायरेक्शनल पाथ कौन सा है सही, तो मैं अपना रिलेशनशिप छोड़ चुका होता, मैं अपनी शादी छोड़ चुका होता, और मैं कभी एक कंपनी स्टार्ट करने की नहीं सोचता। तो इसको कहते हैं आप स्पिरिचुअल वेज में थ्रू द बर्थ चार्ट उनको एक प्रैक्टिकल हेल्प प्रोवाइड करवा रहे हो। एंड एक और चीज है कि मुझे ये कहना नहीं चाहिए, बट एस्ट्रोलॉजी को सबसे ज्यादा पंडितों ने खराब किया है। और मुझे लगता है एस्ट्रो योगी पे हम जो काम कर रहे हैं ना, वो उनको प्रैक्टिकल एक कमाल का गाइडेंस देने का काम कर रहे हैं। सीरियसली, मतलब मैं तो यही कर रहा हूँ। बाकी मैं कोई मिरेकल्स में विश्वास नहीं रखता, चमत्कारों में मेरा कोई विश्वास नहीं है। आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, वेरी लॉजिकल। अगर कोई मुझे कहता है कि 1 नंबर वाले जो होते हैं वो ब्रिलियंट लोग होते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है, 8 नंबर वाला इंसान भी कमाल कर सकते हैं, और बस उसको ये पता चलना चाहिए कि उसको जाना का है। GPS for life is the right tagline. अरे हाँ, तो सीरियसली हमारा टैगलाइन भी वही है। And I think now we don't have to thank you for joining Astro Yogi. We have to thank your wife. Yes, very yeah, true. we have to Seriously, these are very deep gratitude and thanks Bilkul. to your wife. How has your journey been? I will not take up too much of your time, but how has your journey been so far with Astro Yogi? It was amazing, seriously. अभी तक मतलब ये सबसे स्मूथ पेज है मेरी लाइफ का। तो हाँ, सीरियसली टच वुड। बेसिकली मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, पर वहाँ पे मैंने देखा लोग एक दूसरे को लेग पुलिंग कर रहे हैं, और वो हिडन पॉलिटिक्स नाम का जो एक टर्म है ना, वो कॉर्पोरेट सेक्टर में इसी वजह से। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि नाउ आई एम एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ बेसिकली, राइट। सो
मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है मतलब इसका रिप्लाई के लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है सीरियसली मैम। इट्स एन अमेजिंग जर्नी और मुझे ऐसा लगता है कि आगे तक कंटिन्यू रहे क्योंकि अभी अभी मैं बाहर बात कर रहा था, मैंने कहा मैं अमन जी को कह रहा था, मैंने कहा आपने 2 ऐप्स के नाम सुने होंगे, एक गुरुजी एस्ट्रो और एक एस्ट्रो चक्रा। तो मैंने कहा वो ना एस्ट्रो योगी पे आके मुझसे कंसल्टेशन लेकर गए कि और एस्ट्रो चक्रा का तो मैंने मुहूर्त निकाल के दिया उनको और मैंने लिटरली। और एक और चीज हुई कि मैंने कॉल सेंटर पे कॉल किया कि मैंने कहा कि मेरे को ना वो लोग कह रहे हैं कि हम एक एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं जिसमें लिटरली मैम उन्होंने हमारे को मुझे ये कहा कि एस्ट्रो योगी में जो फ्लॉज है ना, मतलब क्या होता है वो उनके लिए फ्लॉज थे, मेरे लिए एडवांटेज है। ठीक है, जैसे वो कहते वो उनका एक वो होता था कि अगर आप कंसल्टेशन ले रहे हो तो ना आप ऑन कंसल्टेशन अगर रिचार्ज करवाते हो तो वो आपकी उसमें ऐड नहीं होता है, उससे आपका जो टाइम है वो बढ़ता नहीं है। ठीक है, सो मैंने कहा ये फीचर कुछ सोच के रखा होगा, नहीं तो पूरे दिन एक ही इंसान बात करता रहेगा और मेरे जैसे इंसान से तो बात करते रहेगा वो, क्योंकि मेरे तो मतलब मैं कभी कभी देखता हूँ ना कि 45 मिनट्स बचे मेरे सेशन में और किसी के पास 59 मिनट्स का टाइम है तो मैं ऑफलाइन हो जाता हूँ क्योंकि मुझे पता है वो पूरी बात करके जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि, और मैंने कॉल सेंटर पे कॉल किया, मैंने कहा कि वो लोग ऐसा कह रहे हैं, तो मुझे उन्होंने कहा कॉल सेंटर पे वो आपके लिए आपके पास ना कंसल्टेशन के लिए आए हैं, यू नीड टू गिव देम अ वेरी फाइन कंसल्टेशन। मैंने कहा ठीक है। तो ये पकड़ते हुए किसी ये कौन दे रहा है एडवाइस फाइन कंसल्टेशन। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये तो वही वाली बात हो गई कि हम एक वॉर साइड है और हमसे कोई हमारे सीक्रेट्स पूछने आ रहा है, तो मतलब वो कह रहे हैं कि हम एक ऐसी आर्मी तैयार कर सकते हैं जो आपको हरा पाए। पर मैं अभी अमन जी को ये कह रहा था, मैंने कहा देखो वो आए तो बेस्ट के पास ही ना, वो हमारे पास आए कंसल्टेशन के लिए कि मतलब मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। तो मैं अगर ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट करूंगा, और 2 प्लेटफॉर्म्स तो ऐसे थे जो स्टार्ट होने से पहले ही गिर गए, तो वो तो है ही नहीं मार्केट पे, तो ऐसा है। I think sometimes people think that what looks easy, it is easy. Yes. And what looks easy is not easy because there's lot of logical things that have gone, which you can see, but there are a lot of soft things. Exactly. I would say other things which go into any business, into any platform. A lot of values that we put into our platform, which are intangible. These are intangible things. Yes, they are not, trust hai, integrity hai, any of those, empathy hai, all of those values which are part and parcel of the team, part and parcel of our partners, is not a it's मतलब वो ऐसी कोई चीज नहीं है कि you can give a document of it and say okay how do we do बिल्कुल this? बिल्कुल You cannot. So right. I think I think that people have thought it's easy, and like I said, but the world is wide open to everybody. Yes. The world is wide That's open true. to everybody. Good luck to everyone. I think that's what my motto is. That's true. Good luck to everyone. You stay in your lane, you do your work. आप अपना काम करो. Don't bother too much about left क्या हो रहा है और right. Yes. That's very true. That's real karma basically. So सामने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी और से कंपटीशन की बजाय ना, जैसे मैंने सीखा हमेशा कि आप अपना कंपटीशन खुद ही होने चाहिए. Yes, 100%. Yes. 100%. I'm a 100% believer of that. Let's be our own competition. We should not see, because when you focus too much on competition, it's also very demoralizing. Yes. But when you focus on yourself, so people ask me, you've been doing this, आप बोर नहीं हुए या आपने रिटायर? I'm like, no, I'm very excited to come to work every morning, and I come to office every single day. Yes. From morning to evening, I'm there every day. Like, I'm not sitting somewhere else, and I enjoy my time in office. Yes, that's true. Which is because मुझे लगता है कि और बहुत कुछ है करने वाला. Money is not my driver. My driver is ideas,
इनोवेशन, और क्या कर सकते हैं, Yes. और कैसे लाइव्स बदल सकते हैं, मतलब what more can we be doing बिल्कुल. that today we are not doing. Right. So I think that makes a difference. तो Definitely. अगर कोई आपको करता फोन, कोई बात नहीं. नहीं बिल्कुल. वो वैल्यूज किधर से लाएंगे? वो है ना कि आप उन्होंने अच्छा जब उन्होंने कंसल्टेशन दिया तो उनका जो मेन मोटिव था वो था मनी मेकिंग. मैंने कहा ये काम नहीं करेगा सीरियसली, और वो काम नहीं कर रहा है सीरियसली, वो कर ही नहीं रहा है. तो दिस इज थिंग बेसिकally. I want to thank you for coming. Thank you so much. I mean, you made all that effort to drive here, come here, and meet with us, all of us, and with the team. And we've been hearing your name for such a long time now. Who is this person? who is at the center of so much trouble? I need to know who this is. But now meeting you, I can understand. I can understand fully, where your passion and energy and all of that comes from. It is, and you have great energy, by the way. It's just, I'm a great believer of energies. Even I feel whatever I've achieved in my own life has been pure manifestation. I have, That's true. Seriously. I manifest whatever, and there are so many things in my life which I have said. Everyone ने नहीं ऐसे नहीं होगा, वैसे मैंने कहा नहीं ये हो जाएगा, कहते नहीं होगा, मैंने कहा होगा. And I'm not an astrologer. I'm not. I have not been able to study that side of things. But where manifestation is concerned, yes, the law of attraction, the law of vibration, the law of all the laws of the universe, I know that they're all moving at the same time to bring things together. You just need to be tuned into the right radio station. Definitely. Yeah. That's the I main. believe there's a radio station up there which is on this frequency, which is on the, you can do this, Meena, frequency. And when I tune into that frequency, there is nothing that stops us. Right now. That's true. Seriously, that's very true. And that's the key, basically. That's it. Right. So thank you so much. Thank you very much for coming. Thank you. It's really, really been a pleasure. Thank you. Talking Thanks. to you. This is just a really small token gift for you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thanks. Thank you.